नाउ ये है पेपर 2 का मैथमेटिक्स वाला पार्ट। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि लेट एफ आर टू आर बी गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 5 डिफाइन एफ ऑफ एक्स 0 for x f of t dx for x is greater than 0 then which of the following option is correct। इसमें जाएगा ऑप्शन 1 कि एफ ऑफ एक्स जो लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 2, फिर ऑप्शन 2 कि एफ ऑफ एक्स जो लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 1 और 4 एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू 0 for 5। तो ये तीनों जाएंगे। इसका सॉल्यूशन है कि एफ ऑफ एक्स is equal to x minus 1 x minus 2 x minus 5 f of x is equal to 0 से x f of t dt as f of 1 is negative and f of 2 is also negative, so f of x cannot be 0 for x belong to 0 for 5, so option A is correct। Now f dash x is equal to f of x is equal to x minus 1 x minus 2 x minus 5, ये माइनस 1 फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो f of x है 2 local minima points at x is equal to 1 and x is equal to 5, f of x has 1 local maxima at the x is equal to 2, 3 lines L1 equal to r lambda I cap lambda belong to R, L2 is equal to R k cap k plus mu j cap mu belong to R, and the L3 is equal to R I plus j plus v k cap v belong to R are given for which points Q on L2 can you find a point P on L1 and a point R on the L3 so that P Q R are collinear। अब ये दूसरा क्वेश्चन है तो इसका तो हो जाएगा ये 1 to 4। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3 लाइन्स L1 is equal to R is equal to lambda I cap lambda belong to R, L2 is equal to R vector equal to k cap plus mu j cap mu belong to R, and L3 is equal to R plus ij plus v k cap v belong to R are given for which points Q on the L2 can you find a point P on L1 and a point R on the L3 so that P Q R are collinear। तो इसमें आ जाएगा आंसर 1 कि k cap plus half j cap, तो उसके बाद ऑप्शन 4 k cap minus half j cap, तो P लैम्डा 0 0 Q 0 म्यू 1 और R 1 1 गामा, तो पी क्यू इजिकल टू के पी आर लैम्डा बाई लैम्डा माइनस 1 इजिकल टू माइनस म्यू बाई माइनस 1 और माइनस 1 बाई माइनस गामा, तो 1 प्लस 1 बाई लैम्डा माइनस 1 इजिकल टू म्यू इजिकल टू 1 बाई गामा, म्यू कैन नॉट टेक वैल्यू ऑफ द 1 एंड द 0, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट x belong to R and let p is equal to 1 1 1 0 2 2 0 0 3 q belong to 2 x x 0 4 0 x 6 6 and the R is equal to p q p inverse, in which of the following is correct। तो इसमें हो जाएगा कि डिटर्मिनेंट R is equal to डिटर्मिनेंट p into डिटर्मिनेंट q into डिटर्मिनेंट p inverse, तो डिटर्मिनेंट R is equal to डिटर्मिनेंट q is equal to 4 12 minus x square equal to 48 minus 4 x square, so now 2xx 0 4 0 x 5 is equal to 4 10 minus x square is equal to 40 minus x square, तो डिटर्मिनेंट R equal to डिटर्मिनेंट 2xx 0 4 0 x 5 plus 8 for all x belong to R at x is equal to 1, determinant q is equal to 48 minus 4 is equal to 44 is equal to determinant R, because determinant R is not equal to 0, so R is equal to alpha beta gamma 0 0 0 alpha beta gamma is equal to 0, so alpha I cap plus beta j cap plus gamma cap is not a unit vector, p is equal to 1 1 1 0 2 2 0 0 3 q is equal to x is equal to 0 is equal to 2 0 0 0 4 0 0 0 6, R is equal to p q p inverse 2 4 6 0 8 12 0 0 18 into 1 by 6 6 minus 3 0 0 3 minus 2 0 0 2 is equal to 1 by 6 12 6 4 0 24 8 0 0 36, R equal to 0 1 2 1 2 by 3 0 4 4 by 3 0 0 6, तो R minus 6 I 1 a b is equal to minus 4 1 2 by 3 0 minus 2 4 by 3 और 0 0 0 1 a b minus 4 plus a plus 2 b by 3 is equal to 0, तो minus 2a plus 4 b by 3 is equal to 0, तो minus 8 plus 8 by 3 is equal to 0, तो b is equal to आ जाएगा 3, a is equal to आ जाएगा 2, now the pq is equal to qp, a 1 2 for both are same, तो x plus 4 plus x is equal to 2 plus 2x plus 0, तो x belong to 5, तो नो वैल्यू है जो एग्जिस्ट करेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 और 4, यानी कि डिटर्मिनेंट R इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 2xx 0 4 0 x 5 प्लस 8 फॉर ऑल x बिलोंग टू R, और आ जाएगा एक 4 की 4x इज इक्वल टू 0 इफ R 1 a b इज इक्वल टू 6 1 a b देन द a प्लस b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, तो 2 और 4 इसका जो आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर n लेट f ऑफ n के बराबर 0 से n सिग्मा साइन k प्लस 1 बाई n प्लस 2 पाई साइन k प्लस 2 बाई n प्लस 2 पाई
by sigma k बराबर 0 से n sin square k plus 1 by n plus 2 pi. Assuming cos inverse x takes value in the 0 से pi, which of the following option is correct? तो इसका जवाब ऑप्शन है कि f of 4 is equal to root 3 by 2. फिर जाएगा ऑप्शन 2 कि if alpha is equal to tan cos inverse f of 6 then alpha square plus 2 alpha minus 1 is equal to 0. और फिर जाएगा 3 कि फाइन 7 cos inverse f of 5 is equal to कितना जाएगा 0. तो 1 2 3 इसका आंसर चला जाएगा. तो इसमें है कि f of n के बराबर 0 से n sin k plus 1 by n plus 2 pi is equal to sin k plus 2 by n plus 2 pi by k बराबर 0 से n 2 sin square k plus 1 by n plus 2 pi is equal to k बराबर 0 से n cos pi by n plus 2 minus cos 2k plus 3 by n plus 2 pi by k बराबर 0 से n 2 sin square k plus 1 by n plus 2 pi. इसको आ जाता है n plus 1 cos pi by n plus 2 minus cos n plus 3 by n plus 2 pi sin n plus 1 by n plus 2 pi by sin pi by n plus 2 y n plus 1 minus cos pi into sin n plus 1 by n plus 2 pi by sin n pi by n plus 2 n plus 1 cos pi n plus 2 plus cos n plus 3 by n plus 2 pi by n plus 1 plus 1 is equal to n plus 1 cos pi n plus 2 plus cos pi by n plus 2 by n plus 2 is equal to cos pi by n plus 2. तो f पहला ऑप्शन है कि f of 4 is equal to cos pi by 6 यानी रूट 3 by 2 यानी कि करेक्ट है. फिर अल्फा इक्वल टू tan cos इनवर्स f of 6 तो tan cos इनवर्स cos pi by 8 यानी tan pi by 8. तो अब यहाँ से tan pi by 4 इज इक्वल टू होता है 2 tan pi by 8 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर pi by 8. तो 1 इज इक्वल टू 2. अब tan pi by 8 को अल्फा मान लिए थे तो 1 इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 1 माइनस अल्फा स्क्वायर. तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो ए भी करेक्ट हो जाएगा. फिर sin 7 cos इनवर्स f of 5 इज इक्वल टू sin 7 cos इनवर्स cos pi by 7 इज इक्वल टू sin pi इज इक्वल टू 0. तो ये भी करेक्ट हो जाएगा. तो ए फिर डी और करेक्ट है. अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f of n इज इक्वल टू cos pi by n plus 2 इज इक्वल टू 1. तो ये क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन 4 है जो इनकरेक्ट है, बाकी सभी ऑप्शन है जो करेक्ट है. नेक्स्ट है इलेट f R be a function we say that f has property 1 if limit h tends to 0 f of h minus f of 0 by root over mod of h exists and is finite, and property 2 if limit h tends to 0 f of h minus f of 0 by h square exists and is finite. Then which of the following option is correct? तो limit h tends to 0 h2 by 3 minus 0 by root over h mod is equal to 0. फिर limit h tends to 0 sin h minus 0 by h square derivative used. फिर limit h into 0 mod of h minus 0 by root over mod of h is equal to 0 और f of x is equal to x of fx. तो limit h tends to 0 f of h minus f of 0 by h square is equal to limit h tends to 0 h into mod of h minus 0 by h square derivative used. इसका आंसर है ऑप्शन 1 और 3 की f of x is equal to x2 by 3 है प्रॉपर्टी 1 और इसके बाद फिर जाएगा 3 की f of x is equal to mod of x है प्रॉपर्टी 1. तो ये दोनों जाएगा. नेक्स्ट फिर आता है कि लिमिट फॉर a belong to R mod of a is greater than 1. लेट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 के पावर 1 by 3. इसी तरह से n के पावर 1 by 3 बाई n के पावर 1 by 3 बाई 1 प्लस n a प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 1 बाई n a प्लस 2 के स्क्वायर प्लस n a बाई n के स्क्वायर इक्वल टू 54. इन द पॉसिबल वैल्यू इज आर. तो इसमें अगर देखें तो इसमें कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 by n सिग्मा r बाई 1 से n r बाई n to 1 by 3 बाई 1 by n स्क्वायर बाई n a प्लस 1 के होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाई n a प्लस 2 के होल स्क्वायर. इसी तरह से 1 बाई n a प्लस 1 के होल स्क्वायर. तो 0 से 1 x के 1 बाई 3 डी एक्स बाई 0 से 1 डी एक्स बाई 1 a प्लस एक्स के होल स्क्वायर इक्वल टू 3 बाई 4 एक्स के पावर 4 बाई 3 0 से 1 बाई माइनस 1 a प्लस एक्स 0 से 1. तो 3 बाई 4 1 बाई a माइनस 1 बाई a प्लस 1 इक्वल टू 54. 1 बाई a माइनस 1 बाई a प्लस 1 इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू 54. तो a इक्वल टू 8 और a इक्वल टू माइनस 9. तो 1 बाई a इंटू a प्लस 1 इक्वल टू 1 बाई 72. तो इसका आंसर कितना चला जाएगा कि 1 जाएगा कि 8 और फिर चला जाएगा 2 भी कि माइनस 9 भी. तो 1 और 2 इसका आंसर आ जाएगा. अगला क्वेश्चन है कि लेट p1 इक्वल टू i इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 p2 इक्वल टू 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 और p3 इक्वल टू 0 1 0 1 0 0 0 0 1. p4 equal to 0 1 0 0 0 1 1 0 0 and the p5 equal to 0 0 1 1 0 0 0 1 0. p6 equal to 0 0 1 0 1 0 1 0 0 and x equal to k बराबर 1 से 6 pk 2 1 3 1 0 2 3 2 1 pkt where pkt denotes the transpose of the matrix pk. which of the following option is correct? तो इसमें है
कि 1 2 3 यानी कि क्लियरली P1 इज इक्वल टू P1 के ट्रांसपोज इज इक्वल टू P1 के इन्वर्स, तो P2 इज इक्वल टू P2 के ट्रांसपोज इज इक्वल टू P2 के इन्वर्स। इसी तरह से P6 इज इक्वल टू P6 के ट्रांसपोज इज इक्वल टू P6 इन्वर्स and the A transpose equal to A, where A is equal to 2 1 3 1 0 2 3 2 1, using the formula A plus B के ट्रांसपोज A के ट्रांसपोज प्लस B के ट्रांसपोज X के ट्रांसपोज इक्वल टू P1 A P1 के ट्रांसपोज प्लस P6 A P6 के ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज, तो P1 A के ट्रांसपोज P1 के ट्रांसपोज प्लस P6 A के ट्रांसपोज P6 के ट्रांसपोज इक्वल टू X, तो X क्या है, सिमेट्रिक है। तो अब इसमें देखें तो लेट B इज इक्वल टू 1 1 1, एक्स इज इक्वल टू P1 A P1 के P1 ट्रांसपोज B प्लस P2 A P2 के ट्रांसपोज B प्लस P6 A P6 के ट्रांसपोज B, इसी तरह से P1 AB प्लस P A B प्लस P6 AB, तो एक्स इज इक्वल टू P1 P2 P6 6 3 6, एक्स 6 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 2, और 6 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2, तो 30 30 30 यानी कि 30 भी, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा 30। Now since x equal to 1 1 1 and 30 equal to 1 1 1, तो x minus 30 I equal into b is equal to 0 has non-trivial solution b is equal to 1 1 1, x minus 30 I is equal to 0, तो x is equal to P1 A P1 के ट्रांसपोज प्लस P6 A P6 के ट्रांसपोज, तो टैस x इक्वल टू P1 A P1 के ट्रांसपोज प्लस P6 A P6 के ट्रांसपोज यानी 201 प्लस 201 3 इंटू 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा 18, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ऑप्शन 1 2 और 3 इसका आंसर चला जाएगा, यानी कि x is symmetric matrix where the sum of the diagonal entry of the x is 18, or the if x is equal to 1 1 1 alpha then the 1 1 1 then the alpha is equal to कितना आ जाएगा 30, तो 1 2 3 इसका जो ऑप्शन चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट f of x is equal to sin pi x by x square x is greater than 0, let x1 x2 x3 xn be all points of the local maxima of f and the by 1 by 2 by 3 by n be all points of the local minima of the f, which of the following option is correct? तो f dash x इक्वल टू 2x cos pi x by 2 माइनस tan pi x by x का पावर 4 फॉर f dash x by 1 मिनिमम x1 मैक्स और by 2 मिनिमम और x2 मैक्स इस तरह से दिया हुआ है, तो इसमें आंसर चला जाएगा 1 3 और 4, यानी कि x1 माइनस वाई एन का मॉड इज ग्रेटर देन 1 फॉर एवरी n, फिर जाएगा 3 कि x1 प्लस 1 माइनस x1 इज ग्रेटर देन 2 फॉर एवरी n, और जाएगा फिर 4 कि x1 बिलोंग टू 2n by 2n plus 1 for every n, तो 1 3 और 4 इसका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सपोज डिटर्मिनेंट सिग्मा के बराबर 0 से n, के बराबर 0 से n सी के बाई के स्क्वायर, और के बराबर 0 से n सी के इंटू के, और के बराबर 0 से n सी के बाई 3 के इक्वल टू 0, होल्स को सम पॉजिटिव इंडिया n, देन के बराबर 0 से n सी के बाई के प्लस 1 इक्वल कितना हो जाएगा, तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2 n टू n माइनस 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 का पावर n माइनस 2, और फिर n टू n माइनस 1 और 4n इज इक्वल टू 0, तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2 माइनस n स्क्वायर बाई 4 माइनस n स्क्वायर इंटू n माइनस 1 बाई 8 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 0, और 4n प्लस 1 माइनस 2n माइनस n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 4n प्लस 4 माइनस 2n माइनस n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 0, तो 3n माइनस n स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो n माइनस 4 इंटू n प्लस 1 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, और उसके बाद पूरा निकालें तो r बराबर 0 से 4 4 सी आर बाई आर प्लस 1 इक्वल टू r बराबर 0 से 4 5 सी आर प्लस 1 बाई 5 आर, यानी 2 के पावर 5 माइनस 1 बाई 5 इक्वल टू 31 बाई 5 इक्वल टू 6.20, तो आंसर चला जाएगा 6.20। नेक्स्ट है कि द वैल्यू ऑफ द सेक इनवर्स 1 बाई 4 से के बराबर 0 से 10 सेक 1 पाई बाई 12 प्लस के पाई बाई 2 सेक 1 पाई बाई 12 प्लस के 1 प्लस पाई बाई 2 इन द इंटरवल माइनस पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 इक्वल्स, तो इवोल्यूट सेक इनवर्स 1 बाई 4 से के बराबर 0 से 10 सेक 1 पाई बाई 12 प्लस के पाई बाई 12 सेक 1 पाई बाई 12 प्लस के प्लस 1 पाई बाई 2, गिवन एक्सप्रेशन सेक इनवर्स माइनस 1 बाई 4 के बराबर 0 से 10 सेक 1 पाई बाई 12 प्लस के पाई बाई 12 प्लस कॉसेक 1 पाई बाई 12 प्लस के पाई बाई 12 इक्वल टू सेक इनवर्स माइनस 1 बाई 4 के बराबर 0 से 10 2 बाई साइन 1 पाई बाई 6 प्लस के बाई पाई इक्वल टू सेक इनवर्स माइनस 1 बाई 2 के बराबर 0 से 10 1 बाई माइनस 1 के प्लस 1 बाई साइन पाई बाई 6 इक्वल टू सेक इनवर्स के बराबर 0 से माइनस 10 माइनस 1 बाई माइनस 1 के प्लस 1 इक्वल टू सेक इनवर्स 1 इक्वल टू 0, ठीक है, तो इसमें कितना आ जाएगा 0.00 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट ए इक्वल टू 2 i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप एंड b इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप विद द टू वेक्टर्स, कौन सा वाले वेक्टर्स इक्वल टू अल्फा a प्लस बीटा b,
alpha comma beta belong to R if the projection of the phi on the vector A plus B is equal to 3 root 2, then the minimum value of the phi minus A cross B dot phi equals to, so phi is equal to alpha plus 2 A cap plus J cap plus K cap plus beta I cap plus 2 J cap plus K cap. Phi is equal to 2 alpha plus beta I cap plus alpha plus 2 beta J cap plus beta minus alpha K cap. So C dot A plus B by mod of A plus B is equal to 3 root 2. 9 alpha plus beta is equal to 18, so alpha plus beta is equal to 2. C minus alpha cross beta dot C is equal to alpha A plus beta B minus alpha cross B dot alpha A plus beta B plus 6 alpha square plus 6 alpha beta plus 6 beta square equal to 6 alpha square plus alpha 2 minus alpha plus 2 minus alpha का whole square is equal to 6 alpha square minus 2 alpha plus 4. तो मिनिमम वैल्यू कितना जाएगा इसका 18, तो इसका आंसर आ जाएगा 18. Next question is 5 person A, B, C, D are fitted in a circular element if each of them is given a hat of one of the three colors red, blue and the green. Then the number of the page of distributing the hat such that the person fitted in adjacent seats get different color hat is. तो इसका आंसर है कि maximum number of the hats used of the same color are 2. There cannot be 3 otherwise at least 2 hats of the same color are consecutive. Now which hats used either R, R, G, G, B, which can be selected in a 3-way. It can be R, G, G, B, B or the R, R, G, B, B also. Now number of the page of distributing the blue hat single one in the 5 person equal to 5. So let blue hat goes to person A. So A, B, C, D or E. Now either person B and D are filled by the green hats and the C and E are filled by the red hats. Or B and D are filled by the red hats and C and D are filled by the green hats. 2 bays are possible and total number of the bays 3 into 5 is equal to 2 into 2 is equal to 30 bays आ जाएगा. इसका आंसर कितना जाएगा 30. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 3 रूट कॉस थीटा बाई रूट कॉस थीटा प्लस रूट साइन थीटा के होल 5 बाई डी थीटा इक्वल्स, तो आई इज इक्वल टू 3 0 से तो आई इक्वल टू 3 से 0 से पाई बाई 2 रूट ओवर कॉस थीटा डी थीटा रूट ओवर साइन थीटा प्लस रूट ओवर कॉस थीटा का 5 इज इक्वल टू 3 0 से पाई बाई 2 3 रूट ओवर साइन थीटा डी थीटा रूट ओवर कॉस थीटा प्लस रूट ओवर साइन थीटा का 5. तो 0 से पाई बाई 2 3 रूट ओवर कॉस थीटा डी थीटा रूट ओवर साइन थीटा प्लस रूट ओवर कॉस थीटा का 5 इज इक्वल टू 3 0 से पाई बाई 2 रूट ओवर साइन थीटा डी थीटा बाई रूट ओवर कॉस थीटा प्लस रूट ओवर साइन थीटा का 5. तो 2i इज इक्वल टू 3 0 से पाई बाई 2 डी थीटा बाई रूट ओवर साइन थीटा प्लस रूट ओवर कॉस थीटा का 4. तो 2i बाई 3 इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई रूट ओवर tan थीटा प्लस 1 के 4. तो लेट tan थीटा इक्वल टू टी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू 2t डी टी. तो 2i बाई 3 इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 2t डी टी बाई टी प्लस 1 के 4. तो i बाई 3 इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 1 बाई टी प्लस 1 के क्यू माइनस 1 बाई टी प्लस 1 के 4 डी टी. तो i इक्वल टू माइनस 3 बाई 2 टी प्लस 1 के होल स्क्वायर प्लस टी 1 बाई टी प्लस 1 के क्यू 0 से इन्फिनिटी 3 बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 बाई 2. तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 बाई 2 यानी 0.5. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट mod of x denote the number of the elements in a set x. Let f equal to 1 2 3 4 5 6 be a sample space where each element is equally likely to occur if a and b are the independent events associated with. Let mod of x denote the number of the elements in a set x. Let f equal to 1 2 3 4 5 6 be a sample space there where each element is equally likely to occur if a and b are the independent events associated with f. Then the number of the ordered pair a comma b such that 1 say mod of b say less than mod of a equals. तो a and b are the independent events. तो pa pb is equal to pa intersection b. तो a by 6 into b by 6 is equal to c by 6. तो ab is equal to 6c. If mod of a equal to a mod of b is equal to b, तो mod of a intersection b is equal to c. तो a comma b comma c equal to 3 2 1 और 4 3 2 6 1 1 6 2 2 6 3 3 6 4 4 6 5 5. तो टोटल 360 प्लस 62 यानी कि 422 आ जाएगा. सो जैसे 3 2 1 है तो 4 5 6 C 1 5 C 2 3 C 1 यानी कि 180. 4 3 2 है तो 6 C 2 4 C 2 2 C 1 इक्वल टू 180. 6 1 1 है तो 6 C 1 इक्वल टू 6 6 C 2 इक्वल टू 15 6 C 3 इक्वल टू 20 और 6 C 4 इक्वल टू 15 6 C 5 इक्वल टू आ जाएगा 6. अब इसके आगे फिर है क्वेश्चन मैचिंग टैप वाले. तो लेट f of x equal to sin pi cos x and the g of x equal to cos 2 pi sin x with the two function defined for x is greater than 0. Define the following sets whose elements are written in the increasing order.
x equal to x f of x will equal to 0 by x f dash x equal to 0, z equal to g of x equal to 0, w equal to g f g of x equal to 0. List 1 contains the set x, y and z. W list contains the some information regarding this set. तो इसमें है कि मैचिंग अगर देखें तो मैचिंग कुछ इस प्रकार से आएगा। पहला क्वेश्चन इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो इसमें है जो फोर्थ वाला यानी कि 3 पी क्यू और यू, ये सिर्फ है जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है 3 पी क्यू और यू। तो 3 ठीक है 3 उसका फिर पी आ जाएगा, क्यू आ जाएगा और यू आ जाएगा ये वाला। इसके आगे फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो इसमें 3 जाएगा यानी 2 का क्यू टी आ जाएगा। तो 2 का आ जाएगा, 2 का आ जाएगा, एक तो क्यू आ जाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और एक टी आएगा पाई बाई 3 फिर 3 2 बाई 2 और पाई ये दोनों आ रहा है। उसको सॉल्यूशन देख लेते हैं वो। इसमें है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो फाइन पाई कॉस एक्स इक्वल टू 0, पाई कॉस एक्स इक्वल टू एन पाई कॉस एक्स इक्वल टू एन, कॉस एक्स इक्वल टू -1 0 1 एक्स इक्वल टू एन पाई 2 एन प्लस 1 पाई बाई 2 एन पाई बाई 2 एन बिलोंग टू आई। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 कॉस पाई एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस पाई साइन एक्स इक्वल टू 0, पाई कॉस एक्स इक्वल टू एन प्लस 1 पाई बाई 2 और एक्स इक्वल टू एन पाई, कॉस एक्स इक्वल टू एन प्लस 1 बाई 2 और एक्स इक्वल टू एन पाई, कॉस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई 2 और एक्स इक्वल टू एन पाई। तो बाई इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3 एन पाई एन बिलोंग टू आई। तो -2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 0 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 पाई और 4 पाई बाई 3 बीच है द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कॉस 2 पाई फाइन एक्स इक्वल टू 0, तो 2 पाई फाइन एक्स 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो फाइन एक्स इक्वल टू n प्लस 1 बाई 4 एन प्लस माइनस 1 बाई 4 प्लस माइनस 3 बाई 4। तो जेड इक्वल टू n पाई प्लस माइनस फाइन इनवर्स 1 बाई 4 n पाई प्लस माइनस फाइन इनवर्स 3 बाई 4 एन बिलोंग टू आई। जी डेफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो यानी माइनस फाइन 2 पाई फाइन एक्स 2 पाई कॉस एक्स इक्वल टू 0, तो 2 पाई फाइन एक्स इक्वल टू एन पाई और एक्स इक्वल टू एन प्लस 1 पाई बाई 2। तो फाइन एक्स इक्वल टू एन बाई 2 इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 बाई 2 प्लस माइनस 1 और एक्स इक्वल टू एन प्लस 1 पाई बाई 2। तो डब्ल्यू इक्वल टू एन पाई 2 एन प्लस 1 पाई बाई 2 एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 एन बिलोंग टू आई। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है लेट सर्किल C1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड C2 इक्वल टू एक्स माइनस 3 का बाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटरसेक्ट एट द पॉइंट x and y. Suppose that another circle C3 x minus h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर satisfy the following condition. तो इसमें मैचिंग है तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन है द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो दूसरा का जाएगा u यानी कि तीसरा का ठीक है ये जा रहा है। इसके बाद फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो इसमें जाएगा चौथा का s भी जाएगा। ये सर्कल दिया हुआ है W हो गया N हो गया Z हो गया और M हो गया और ये P है फिर 3,4 है और ये y है और ये x है। तो 2r इक्वल टू एम एन इक्वल टू 3 प्लस रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 12 और सेंटर C ऑफ द सर्कल C3 लाइज ऑन द y इक्वल टू 4 बाई 3x r इक्वल टू 6 दिया हुआ है। तो लेट सी h बाई 4 बाई 3h और C इक्वल टू एम सी माइनस 1 इक्वल टू 12 बाई 2 माइनस 3 इक्वल टू 3 रूट ओवर h स्क्वायर प्लस 16 बाई 9 h स्क्वायर इक्वल टू 3 तो 5h बाई 3 इक्वल टू 3 h इक्वल टू 9 बाई 5 k इक्वल टू 4 बाई 3 h इक्वल टू 12 बाई 5 2h प्लस k इक्वल टू 18 बाई 5 प्लस 12 बाई 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ द लाइन जेड डब्ल्यू। तो C1 इज इक्वल टू C2 तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9 डिस्टेंस ऑफ द जेड डब्ल्यू फ्रॉम द 0,0 तो मॉड ऑफ 9 बाई रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 9 बाई 5 तो लेंथ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 2 रूट ओवर 3 स्क्वायर माइनस 9 बाई 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 24 बाई 5 डिस्टेंस ऑफ जेड डब्ल्यू फ्रॉम द सी 3 गुना 9 बाई 5 प्लस 4 गुना 12 बाई 5 माइनस 9 बाई रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 6 बाई 5 लेंथ ऑफ जेड डब्ल्यू हो जाएगा 2 रूट ओवर 6 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर इक्वल टू 24 बाई रूट ओवर 6 बाई 5 तो लेंथ ऑफ जे डब्ल्यू बाय लेंथ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा रूट ऑफ 6। नेक्स्ट है एरिया ऑफ द ट्रायंगल एम जेड एन अगर देखें तो 1/2 यानी एन एम 1/2 जे डब्ल्यू इक्वल टू 72 रूट 6 बाई 5। एरिया ऑफ ट्रायंगल जेड एम डब्ल्यू देखें तो हाफ इंटू जेड डब्ल्यू वाई एम प्लस ओ पी यानी हाफ इंटू 24 रूट 6 बाई 5 इंटू 3 प्लस 9 यानी कि 288 बाई रूट 6 बाई 25। एरिया ऑफ ट्रायंगल एम जेड एन बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल जेड एम डब्ल्यू इक्वल टू 5 by 4. Slope of the tangent to C1 at m is equal to -1 by 4 by 3 equal to -3 by 4. Equation of the tangent y is equal to mx minus 3 root over 1 plus m square यानी y is equal to -3 by 4 x minus 3 root over 1 plus 9 by 16 यानी y is equal to -3 by 4 minus 15 by 4 तो x is equal to -4 by 3 minus 5 tangent to x square equal to 4 to alpha into y
तो x इक्वल टू एम डेफ बाई प्लस 2 अल्फा इंटू एम डेफ, कंपेयर 1 एंड 2, तो एम डेफ इक्वल टू -4/3 और 2 अल्फा बाई एम डेफ इक्वल टू -5, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा 10/3, इसका आंसर हो जाएगा 10/3। तो इसका आ जाएगा 4 का s और फिर यहाँ पर चला जाएगा 2 का क्यूब, तो ये आंसर आ जाएगा।